بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانیاں۔ ہر آنے والی نیو ویڈیو اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آن کر دیں تاکہ آنے والے نئی ویڈیوز کی اپڈیٹڈ نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل سکے۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی انتہائی دلچسپ، خوفناک اور سنسنی خیز موڑ پہ ہے۔ بدرو ایپیسوڈ 5 یا پارٹ 5۔ آسمان پر چھائے ہوئے کالے بادلوں کی وجہ سے سر شام ہی گپ اندھیرا چھا گیا تھا۔ ماں کچن میں کام کر رہی تھی جبکہ شگفتہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ شگو بیٹی ذرا ادھر آنا، مہن اماں نے اسے پکارا۔ جی آئی اماں، وہ کہہ کر اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کی ماں کچن میں ہی تھی۔ وہ ان کے پاس پہنچی۔ ماں نے پالک کا بڑا سا تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ارے بیٹی ذرا یہ پالک تو کاٹ لینا، میں جب تک آٹا گوندھ لیتی ہوں۔ جی اچھا اماں، ابھی کاٹ دیتی ہوں، شگفتہ نے کہا اور کھڑے کھڑے وہیں پالک کی ڈنڈیاں اور پتے الگ کرنے لگی۔ پھر اس کی مٹھیاں بنا کر چھری سے کترنے لگی۔ ماں بھی کچن کے ایک سلیب کے قریب کھڑی آٹا گوندھنے لگی۔ بیٹی، ماں شگفتہ کو ماں کی آواز سنائی دی۔ جی اماں، وہ پالک کاٹتے ہوئے بولی۔ ہاں بیٹی کہو، ماں نے پوچھا۔ آپ نے تو مجھے پکارا تھا ابھی، شگفتہ نے قدرے چونک کر کہا۔ میں نے نہیں تو، ماں نے کہا اور پھر وہ کام میں مشغول ہو گئی۔ بیٹی ادھر دیکھو میری طرف۔ ماں دوبارہ شگفتہ کو ماں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا مگر وہ آٹا گوندنے میں مشغول تھی۔ وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی۔ اچانک شگفتہ کے ہاتھ سے چھری نیچے گری۔ وہ اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اس کی نگاہیں اپنے پاؤں کے ماں کے پیروں پر پڑی تو وہ بری طرح دہل گئی۔ ماں کے پاؤں الٹے تھے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ اس کی ماں نے شاید اپنا رخ پھیرا ہوا ہے۔ اس نے جھکے جھکے گردن اٹھا کر دیکھا تو وہ بدستور دوسری طرف رخ کیے کام میں مشغول تھی۔ شگفتہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ماں کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی، پھر لرزتی ہوئی آواز سے بولی، آپ کے پاؤں الٹے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ ماں کے سرد اور سپاٹ لہجے پر شگفتہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ چھری پکڑا ہوا ہاتھ کپ کپانے لگا۔ اس پر دوبارہ ہسٹریائی دورہ جیسی کیفیت طاری ہونے لگی۔ پھر اچانک اسے کچن کے دروازے پر آہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر گردن موڑی تو مارے دہشت کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کچن کے دروازے پر اس کی ماں کھڑی تھی۔ شگفتہ نے ایک لرزتی ہوئی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر گردن موڑ کر اپنے دائیں جانب کھڑی آٹا گوندھتی ہوئی ماں کو دیکھا جس کے پاؤں الٹے تھے۔ اسے وہیں کھڑے پایا۔ اپنی ماں کی دو ہم شکل کو اپنے سامنے دیکھ کر شگفتہ کی حالت غیر ہونے لگی۔ دفعتاً پھر اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی جو باہر کسی کمرے سے ابھری تھی۔ شگو بیٹی ذرا ادھر آنا میرے پاس۔ یہ بھی اس کی ماں کی آواز تھی۔ شگفتہ کو سکتہ ہو گیا۔ تب پھر اس کے دائیں جانب کھڑی الٹے پیروں والی ماں نے اچانک عجیب انداز میں ہنسنا شروع کر دیا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں نہا گئی۔ ماں نے ہنستے ہنستے اس کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کے نقش بدلنے لگے اور بھیانک چہرے والی شیطانی مخلوق کی صورت اختیار کر گئے۔ شگفتہ نے ایک زوردار ہسٹریائی چیخ ماری اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھری ماں کے پیٹ میں اتار دی۔ ماں کے حلق سے لرزہ خیز چیخ ابھری اور ان کے پیٹ سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ ماں اپنا پیٹ پکڑے وہیں زمین پر گر پڑی۔ ماں کی ہم شکل غائب ہو گئی۔ دوسری ہم شکل ماں جس کا چہرہ بھیانک ہوتا دیکھ کر شگفتہ نے اس کے پیٹ میں چھری گھونپی تھی، وہ اب فرش پر لیٹی تکلیف کے مارے بری طرح کرا رہی تھی۔ ان کا چہرہ ٹھیک ہو گیا تھا اور پاؤں بھی سیدھے ہو گئے تھے۔ شگفتہ کانپ گئی۔ خون آلود چھری اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ ماں کو سنبھالنے لگی۔ ہائے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ شگفتہ زخمی ماں کو سنبھالتے ہوئے رونے لگی۔ ماں اپنا پیٹ پکڑے درد سے چلا رہی تھی۔ شگفتہ نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ شگفتہ روتی ہوئی دروازہ کھولنے لپکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے باپ کھڑا تھا۔ تیمور نے جو اپنی بیٹی کے کپڑوں میں خون لگا دیکھا تو دہل گیا۔ یہ کیا ہوا تھا تمہارے؟ یہ خون کیسا؟ وہ بے رحم سے جملے بولے۔ ابو وہ شگفتہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ غش کھا کر باپ کے بازوؤں میں جھول گئی۔ وہ بری طرح ہراساں اور پریشان ہو گئے۔ بے ہوش شگفتہ کو سنبھالتے ہوئے وہ جلدی سے اندر آئے تو کچن کی طرف سے اپنی بیگم کی جان کنی کے انداز میں کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مزید پریشان اور متحوش ہو گئے۔ شگفتہ کو صحن میں ہی بچھی ایک چارپائی پر ڈال کر وہ کچن کی طرف لپکے کہ اندر اپنی بیگم کو خون آلود اور زخمی پا کر سناٹے میں آ گئے۔
फिर तो जैसे दौड़ मच गई। इन्हें साजिद पर बेतहाशा तैश आने लगा कि वो इस वक्त घर पर मौजूद ना था। वो दोहरी परेशानी का शिकार हो गए थे। एक तरफ बेटी बेहोश पड़ी थी तो दूसरी तरफ बेगम जान खनी के आलम में ज़ख्मी थी, जो शायद पेट पर लगे घाव की वजह से अब बेहोश हो चुकी थी। अचानक तैमूर की नज़र फर्श पर पड़ी खून आलूद छुरी पर पड़ी। वो जान गए कि इनकी बेगम के पेट में इसी छुरी से वार किया गया था, मगर किसने? ये सवालिया निशान आंकड़े की तरह इसके जहन में अटक गया। इन्होंने फ़ौरन अपने मुतख़य्यल हवासों पर काबू पाया और बेगम को कंधे उठाकर कंधे पर लादा और बाहर निकल आए। आसपास पड़ोसी भी जमा हो गए थे। तैमूर ने जल्दी जल्दी पहले अपनी बेगम को कार के अकबी नशिस्त पर लिटाया और अंदर भागा और बेहोश बेटी को भी उठाकर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने इनकी मजबूरी और मुसीबत को देखते हुए फ़ौरन अपनी औरतों को इनके साथ कर दिया और एक मर्द भी इनकी मदद में शामिल हो गया। आनन फ़ानन वो अस्पताल पहुँचे। शगुफ्ता का कोई ख़ास तबी मसला ना था, लेकिन इसकी माँ की हालत बहुत ही नाजुक थी। खून ज़्यादा बह जाने की वजह से इनकी हालत मज़ीद बिगड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने इन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, मगर वो जाँबाज़ ना हो सकी और अस्पताल में ही ज़रा देर बाद दम तोड़ दिया। फिर तो जैसे पूरे घर में ही नहीं, पूरे मोहल्ले में कहराम मच गया। मोहल्ला था ही कितना बड़ा, जंगल की आग की तरह ये बात मशहूर हो गई कि तैमूर की पागल और जुनूनी बेटी ने अपनी माँ के पेट में छुरी घोंपकर इसे मार डाला। पुलिस भी ज़ाब्ते की कार्रवाई निपटाने वहाँ पहुँच गई और शगुफ्ता से बयान लेना चाहा, मगर बेचारी शगुफ्ता को अपनी हालत दगरगूं हो रही थी। माँ के इंतकाल पर इस पर मुतवातर गशी के दौरे पड़ रहे थे। तैमूर ने अपने किसी जानने वाले की मदद से पुलिस के आला अफसर से बात करके अपनी मजबूरी बयान की और मामला रफा दफा करवा दिया। इस दौरान इन्हें अपनी जेब से कुछ देना दिलाना भी पड़ा था। लोगों ने तैमूर को ये मशवरा दिया कि इससे पहले कि इनकी पागल और जुनूनी बेटी शगुफ्ता किसी और का खून कर दे, इसे फ़ौरन पागल खाने दाखिल करवा दिया जाए। तैमूर ने शगुफ्ता को पागल खाने तो दाखिल नहीं करवाया, अलबत्ता इसे अपनी कार में लेकर सीधा टाहली वाले बाबा के पास पहुँचे और बड़े रंधे हुए लहजे में सारी बिपता सुनाई। वो एक बहुत ही भयानक और ख़तरनाक शैतानी मखलूक है। सारी बिपता सुनने की ज़रा देर की खामोशी के बाद टाहली वाले बाबा ने कहा। इनका चेहरा जोश और जलाल से कपकपा रहा था। तैमूर इनकी बात सुनकर बुरी तरह ठटके और हैरत और परेशानी से पूछा, भयानक मखलूक? आखिर ये कौन है, कहाँ से आई है और इसको हमारे साथ क्या दुश्मनी है? टाहली वाले बाबा बोले, वो कई 100 बरस पहले मर चुकी है, ये इसकी बदरू है। रही बात यह कि वो तुम्हारी बेटी की दुश्मन क्यों है, ये पुरस्रार हकीकत अभी राज में है। हमें भी अभी इसका पूरी तरह इल्म नहीं, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी बेटी की ही नहीं बल्कि तुम्हारे ख़ानदान के जान की भी दुश्मन है। अभी इसके पास वो कुव्वत नहीं है कि वो अपने ज़ोर बाजू से किसी को जिस्मानी गज़न पहुंचा सके, मगर वो अपनी शैतानी और भयानक मनाज़र के सहारे इस तरह कारिस्तानियत सरंजाम देती रहेगी जिस तरह तुम्हारी बेटी को इसने इस्तेमाल किया। वो इतना कहकर खामोश हो गए। तैमूर पुरतशवीश सोच में मुस्तगरक हो गए। फिर बोले, ए अल्लाह के नेक बंदे, अब आप ही हमें इस भयानक बदरू से निजात दिलाइए। हाँ सरे दस्त, तो इससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है। दरहकीकत इस भयानक बदरू की कब्र इस अंधेरी कोठी के अंदर किसी कमरे में बनी हुई है, जो तुम्हारे मोहल्ले में एक वीरान प्लॉट पर बरसों से नज़र आ रही है। वो बताने लगे, लेकिन ख़बरदार इस कब्र के करीब भी भटकने की कोशिश मत करना। इस अंधेरी कोठी को तुम्हें इसके मालिक से ख़रीद कर इसे बसाना होगा। तो क्या? तैमूर इनकी बात सुनकर परेशान हो गए। हाँ, अभी हमारा इल्म यही कहता है कि जो भयानक बदरू तुम्हारे ख़ानदान की जान की दुश्मन बन चुकी है, इसका ये पुरस्रार राज इसी अंधेरी कोठी से ही ताल्लुक़ रखता है। हम पूरी तरह ये पुरस्रार राज जानने के लिए अपने इल्म का ज़ोर लगाएंगे। हमें उम्मीद है कि जल्द या बदेर इस खूनी राज को जान लेंगे, लेकिन तब तक इस बदरू की चीरा दस्तियों से महफूज रहने का सरेदस्त यही वाहिद तरीका है कि इस कोठी को वीरान और उजाड़ ना रखा जाए। ए बुज़ुर्ग, क्या ये ज़रूरी है कि इसे मैं ही आबाद करूं? क्या कोई दूसरा को ही? नहीं, बुज़ुर्ग ने इसकी बात काट कर वाशगाफ अल्फाज में कहा, इसे तुम्हें ही आबाद करना होगा, क्योंकि इस सारे पुरस्रार और खूनी वाक़यात का ताल्लुक़ तुम्हारे ख़ानदान से है। बस अब ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करो और इसके मालिक को तलाश करके इससे फ़ौरन ये कोठी ख़रीदो। ठीक है, मैं ऐसे ही करूँगा, मगर शगुफ्ता, इसकी तुम फ़िक्र ना करो, बुज़ुर्ग ने कहा और फिर अपने लंबे सफ़ेद कुर्ते की जेब से एक तावीज़ निकाल कर
तैमूर को थमाते हुए बोले, इसे हमेशा अपने पास रखना, तुम्हारे ख़ानदान बदरू के शर से महफूज रहेगा। एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। क्या इस तरह हमेशा के लिए हमारी इस बदरू से जान छूट जाएगी? नहीं, ये अभी इतना आसान नहीं। वो बोले, अभी ये पहला मरहला तय करो। जब तक हम भी इस पुरस्कार मामले से आगाही के लिए तवील रियाजत करेंगे, तुम हमारे पास आते रहना। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखो, हम जल्द ही ये राज मालूम कर लेंगे। तैमूर इनका शुक्रिया अदा करके वहाँ से रुखसत हो गए। साजिद उदास सा नासिर की दुकान पर मौजूद था। इसे अपने माँ की अंधोनाक मौत पर अजहद दुख था। वो नासिर से उदास लहजे में बोला, यार नासिर, मेरा ख्याल है मेरे इस अमल करने पर शैतानी मखलूक ने गुस्से में शगुफ्ता के ज़रिए मेरी माँ को मौत के घाट उतारा है। अब मैं ये अमल हरगिज़ नहीं करूँगा। इसकी बात सुनकर नासिर परेशान हो गया। इसे अपने काम की फ़िक्र लाख होने लगी और वो इसे समझाते हुए बोला, साजिद, ये तो कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रहा है। अमल को 12 रोज़ बीत चुके हैं, 7 रोज़ बाकी हैं। इस तरह तुम अपनी और मेरी भी सारी मेहनत ज़ाया कर दोगे। मुझे इसकी परवाह नहीं, साजिद बेजारी से बोला। यार, क्या तुम इस आमिल रंगामाती की बात को भूल गए जिसने कहा था कि इस अमल से शैतानी मखलूक का हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा? बसूरत दिगर वो तुम्हारे सारे ख़ानदान को मौत के घाट उतार देगी। नासिर ने इसे डराने की कोशिश की। तो अब कौन सा हम इसके शर से बचे हुए हैं? साजिद ने नागवारी से कहा और फिर जैसे अचानक इसे एक ख्याल आया तो वो बोला, तुम्हें एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। कैसी बात? वो बात यह है कि मेरे अब्बू एक नेक बुजुर्ग से मिले थे जो टाहली वाले बाबा के नाम से मशहूर हैं। अब्बू ने इन्हें सारी बात बताई थी। वो हमारे इस पुरस्कार मसले में खातिरख्वाह मदद कर रहे हैं। इन्होंने मेरे अब्बू से ये कहा है कि जो आमिल रंगामाती ने हमसे कहा था। क्या कहा था? नासिर जो बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहा था बोला, यही कि एक भयानक शैतानी मखलूक की बदरू हमारी जान की दुश्मन बन गई है। लिहाजा किसी नेक बुजुर्ग ने अबू को यह मशवरा दिया है कि इस अंधेरी कोठी को हम खरीद कर इसे आबाद करें। नासिर की बात सुनकर वो चौंक गया। फिर चंद सानिये किसी उलझन अमेज़ी में मुस्तगरिक रहने के बाद बोला, तो फिर क्या अब तुम्हारे अबू इस अंधेरी कोठी को खरीदना चाहते हैं? हाँ, इसने बताया। क्या इन्हें मालूम है कि वहाँ एक कब्र भी है? हाँ, टाहली वाले बाबा ने अबू को बताया था कि वो इसी शैतानी मखलूक की कब्र है जिसकी बदरू हमारे पीछे पड़ी हुई है। साजिद ने कहा, मगर इस तरह तो उल्टा हम सब की जान को मज़ीद ख़तरा पैदा हो जाएगा और फिर हमारा अमल भी अधूरा रह जाएगा। नासिर बोला, ऐसा नहीं होगा। टाहली वाले बाबा इस पुरस्कार राज का खोज लगाने, अपने इल्म के ज़रिए लगाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। तो फिर इस कब्र के बारे में इन्होंने और क्या कहा? क्या इसे ढाया जाएगा? नासिर ने किसी ख्याल के तहत पूछा। साजिद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्होंने सख्ती से हमें इस कब्र की तरफ जाने से भी मना कर रखा है। नासिर किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर जब साजिद चला गया तो वो इसी वक्त आमिल रंगामाती के पास पहुंचा और इसे सारी बात बता दी। ये बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी सारी बातें बगौर सुनने के बाद वो तेज़ लहजे में बोला, अगर ऐसा हो गया और वो कोठी साजिद के बाप तैमूर ने ख़रीद ली तो सारा अमल ना सिर्फ धरे का धरा रह जाएगा बल्कि इसका उल्टा नुकसान भी हमें भुगतना पड़ेगा। तुम साजिद को समझाओ कि वो अपने बाप को कोठी खरीदने से मना करे, वरना तुम भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। वैसे साजिद अपने बाप के फैसले के हक़ में नहीं है कि वो अच्छा भला अपना घर छोड़कर इस आसेबी कोठरी में जा बसे, लेकिन असल परेशानी की बात यह है कि साजिद अपनी माँ की मौत के बाद इस अमल से बददिल हो चुका है, इसलिए इसने वो अमल आइंदा ना करने का पक्का फ़ैसला कर लिया है। नासिर ने आमिल रंगामाती को असल मसले से आगाह किया तो आमिल के चेहरे पर तशवीश के साए मज़ीद गहरे हो गए। तुम इस बेवकूफ़ लड़के को समझाओ कि अगर इसने ये अमल अधूरा छोड़ा तो पहले से ज़्यादा बड़ी मुसीबतों के पहाड़ इन पर टूट पड़ेंगे। मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की है मगर इसने मेरी बात मानने से अब साफ इनकार कर दिया है, नासिर ने कहा। आमिल रंगामाती ने एक तवील हंकारी भर के कहा, ठीक है, फिर मुझे ही कोई दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा।
माँ के इंतकाल के बाद शगुफ्ता बिल्कुल घुट कर रह गई थी। वो अपनी माँ का कातिल खुद को समझे हुए थी। अगरचे इसके बाप और भाई साजिद ने इसे समझाने और यह तसल्ली देने की भी कोशिश की थी कि इसमें इसका कोई कसूर नहीं और ये सारी कारस्तानी इस पुरस्रार शैतानी मखलूक की है। शगुफ्ता को अब इस भयानक मखलूक से नफ़रत हो गई थी, शदीद नफ़रत। यही वो जज्बा था जिससे मगलूब होकर इसे अपनी माँ के रूप में देखकर गैर इख्तियारी तौर पर इसने पेट में छुरी घोंप दी थी। लेकिन टाहली वाले बाबा की हिदायत के मुताबिक जब तैमूर ने वो अंधेरी कोठी खरीद कर इसमें शिफ्ट होने का ऐलान किया तो साजिद और शगुफ्ता ने अपने बाप के फैसले पर शदीद मुखालफत की। अबू, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि आप बैल मुझे मार। सबसे पहले शगुफ्ता ने मुखालफत करते हुए बाप से कहा। साजिद ने अपनी बहन की तायीद में बाप से यही कहा, हाँ अबू, शगु ठीक कह रही है, वो अंधेरी कोठी ही तो बदरू का मस्कन है, वहाँ तो वो हम सबको बआसानी शिकार कर लेगी। ये मेरा फ़ैसला नहीं है, ठाली वाले बाबा का है, तैमूर बोले, और वो अल्लाह के एक नेक बंदे हैं। ज़रूर इन्होंने कुछ सोच कर और अपने इल्म के बलबूते पर ही हमें यह मशवरा दिया होगा जिसमें हम सब की भलाई है। नहीं अबू, माफ़ कीजिएगा, मुझे तो इस पुरस्कार मामले में वो भी बेबस ही नज़र आते हैं। इन्होंने हमसे कोई हतमी बात अभी तक नहीं की कि आखिर इस खूनी मखलूक का खात्मा कैसे होगा। शगुफ्ता ने संजीदगी से कहा। तैमूर अपने बच्चों की बातों पर नहीं पर उन्हें मलामत आमेज़ी के साथ समझाते हुए बोले, देखो बच्चों, ऐसी बातें मत करो, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं और फिर इनकी कुव्वत का इस बात से साफ अंदाज़ा होता है कि वो सब जानते हैं। कुछ भी हो अबू, हमें तो इस आसीबी कोठी में रिहाइश इख्तियार करने के तसव्वुर से ही होल आ रहा है। हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे, साजिद ने कतईयत से कहा और तैमूर खामोश हो गया। यूं ये मामला तवालत इख्तियार करने लगा। घर में अब एक अनजाने से खौफ की फ़िज़ा पैदा हो गई थी। शगुफ्ता से बाप और बेटा दोनों ही डरे हुए रहते थे कि ना जाने कब वो इन्हें भी इस भयानक मखलूक के रूप में देखकर गलतफहमी से माँ की तरह छुरी घोंप दे। साजिद ज़्यादा परेशान था। इस परेशानी और खौफ जैसी फ़िज़ा में बजाय कमी आने के इजाफा ही होता रहा। इस शाम साजिद अपने दोस्त से मिलकर वापस घर की तरफ आ रहा था कि अचानक एक शख्स ने इसका रास्ता रोक लिया। वो ठटक कर रुक गया। इसके सामने पुरस्रार आमिल रंगा माथी खड़ा था। वो इसे तेज़ नज़रों से घूरते हुए बोला, तुमने ये अमल अधूरा छोड़कर अपनी और अपने घर वालों की मौत का सामान पैदा कर दिया है। तुमने मज़ीद अमल करने से क्यों इनकार कर दिया है? साजिद पहले तो इसकी तेवर देखकर डर गया, मगर फिर हिम्मत करके बोला, मैं अब ये अमल नहीं कर सकता। तुम्हें नासिर ने नहीं बताया कि मेरी माँ किन हालात में मौत का शिकार हुई है? इसकी कोई और वजह होगी, इनकी मौत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता, आमिल ने कहा। और भला क्या वजह हो सकती है? मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस तरह अमल करने से इस खूनी मखलूक ने तैश में आकर इंतकामन शगुफ्ता के हाथों माँ का कत्ल करवा दिया। साजिद ने ठोस लहजे में कहा, यह गलत है। तुम्हें वो अमल हर सूरत में अब पाया तकमील तक पहुंचाना होगा, वरना तुम्हारे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तुम अब इस अमल को अधूरा नहीं छोड़ सकते। अब बाकी 5 दिन ही तो रह गए हैं। आमिल रंगामाती ने इसे घूरती हुई नज़रों से देखते हुए कहा, मगर तुम्हें आखिर हमारे मसले से इतनी दिलचस्पी क्यों है? मेरी मर्ज़ी है, ये मेरा मसला है, मैं जानूँ तुम्हारा क्या काम है। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। इसके ज़िद पर आमिल रंगामाती ने अजीब नज़रों से इसे घूर कर धमकी आमेज़ लहजे में कहा। साजिद को इसकी आंखों में सफाकी की चमक साफ लहराते ही महसूस हुई और वो चेहरे पर करख्तगी के तासुरात भी वाज़ह तौर पर उभर आए। इस वक्त इत्तफाकन आसपास कोई नहीं था, सन्नाटा तारी था। आमिल रंगामाती ने साजिद के चेहरे की तरफ जानेहाना नज़रों से घूरते हुए अपनी कमीज़ के अंदर हाथ डालकर जेब से हाथ बाहर निकाला तो साजिद के औसान खता हो गए। इस पुरस्रार आमिल रंगामाती के हाथ में एक तेज़ और लंबे फल वाला छुरा दबा हुआ था। छुरे के फल की चमक और रंगामाती की चमकती आंखों की सफाकी में कोई फ़र्क ना था। साजिद का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। इसे अपनी मौत साफ नज़र आ रही थी। इसे यकीन हो गया कि ये सफाक आमिल आज इसकी जान लेकर ही रहेगा, मगर ऐसा ना हुआ। आमिल रंगामाती इसकी सरासीमा नज़रों से के सामने छुरा घुमाते हुए सफाकी से बोला, अगर तूने मेरी बात ना मानी तो याद रखना, मैं ये छुरा तेरे पेट में घोंप दूंगा। मुझे इसी वक्त बता, वो अमल तो पूरा करेगा या नहीं? साजिद के मुंह से खौफ के मारे आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, जबकि आमिल रंगामाती इसे अपनी खूनी आंखों से घूरे जा रहा था। इसने छुरे की नोक इसकी गर्दन पर चुभोते हुए दोबारा अपनी धमकी दोहराई,
साजिद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, हाँ, मैं वो अमल ज़रूर पूरा करूँगा। इसकी बात सुनकर आमिल रंगामाती के पतले पतले बदहैयत होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभरी। इसके बाद इसने छुरा अपनी कमीज़ के अंदर छुपा लिया और हुर्राहट अमेज़ आवाज़ में बोला, एक और बात कान खोल कर सुन लो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें किसी भी वक्त किसी भी जगह मौत के घाट उतार सकता हूँ। वो ये कहकर अपने रास्ते पर हो लिया। साजिद की जान में जान आई और वो अपने घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचा, इसका परेशान चेहरा देखकर तैमूर साहब ने इससे पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? खैरियत तो है? जी अबू, परेशानी की कोई बात नहीं। वो घबरा गया तो तैमूर साहब ताड़ने वाली नज़र दे रखते थे। जान गए कि साजिद किसी तशवीश का शिकार है, लिहाजा इन्होंने बड़े शफकत भरे लहजे में इसके सर पर हाथ फेरते हुए दोबारा पूछा, देखो बेटा, हम सब इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब मुसीबत का शिकार हैं। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे बताने से हमारी परेशानी में मज़ीद इजाफा होगा तो बेशक ना बताओ, लेकिन अगर तुम्हारी परेशानी हमारी इस पुरस्कार मुसीबत से वाबस्ता है तो तुम अपनी और हम सबकी भलाई की खातिर छुपाना नहीं चाहिए। तैमूर साहब के नर्म और समझाने वाले अंदाज ने साजिद को बिलाखिर सारी हकीकत आश्कार करने का हौसला अता कर दिया और फिर इसने सारी बात इन्हें बता दी। इत्तेफाक से इस वक्त शगुफ्ता भी वही मौजूद थी। बातों के दौरान चूंकि नासिर का भी जिक्र हुआ इसलिए वो चौंके बिना ना रह सकी, मगर वो कुछ ना बोल पाई थी। अलबत्ता सोचने लगी कि इस सारे मामले में भला नासिर का क्या काम था। तो ये बात है। तैमूर साहब एक पुरसोच हंकारी भरकर ज़ेरे लब बड़बड़ाए, मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा और नासिर को भी। नहीं अबू, वो आमिल बहुत सफाक और ख़तरनाक आदमी है, साजिद ने खौफज़दा लहजे में कहा। इससे डरने की ज़रूरत नहीं बेटा, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मुझे ज़रा इसका घर तो चल कर दिखाओ, वो रहता कहाँ है? तब शगुफ्ता ने किसी ख्याल के तहत कहा, आखिर पता तो चले कि वो पुरस्कार आमिल भाई साजिद और इस लड़के नासिर के ज़रिए पुरस्कार अमल किस मकसद के लिए करवा रहा है? क्या होगा इसका मकसद? तैमूर साहब ने गुस्से से दांत पीस कर कहा, इन लोगों के ऐसी शैतानी अमलों से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये ज़रूर कोई सफली अमल करवाना चाहता होगा इन दोनों से, मगर साजिद बेटे खबरदार, अब तुम मज़ीद ये अमल मत करना, ऐसा ना हो हम दूरी मुसीबत का शिकार हो जाए। नहीं अबू, मैंने तो अपने दिल में पक्का तहैया कर लिया है, अब बेफिक्र रहे, मैं इसकी बात अब आइंदा हरगिज़ नहीं मानूंगा, साजिद ने कहा। शगुफ्ता ने परेशान कुन लहजे में बाप से कहा, अबू आपने शायद साजिद भैया की बात पर गौर नहीं किया। इस आमिल ने वो अमल पूरा ना करने पर भाई को जान से मारने की धमकी भी दी है। हाँ, मगर मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसे लोग सिर्फ गीदड़ भपकियाँ देकर खौफज़दा करना जानते हैं, इस पर अमल करना नहीं। ये कहकर वो साजिद की तरफ मुतवज्जा हुए और पुरजोश लहजे में अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए बोले, तुम दोनों तो अब ये बात अच्छी तरह जान गए हो कि एक खौफनाक और शैतानी मखलूक हम लोगों की दुश्मन बन चुकी है, और अगर हम इससे खौफज़दा होकर हिम्मत हार बैठे तो वो बासानी एक एक करके हम सबको मौत के घाट उतार देगी। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारी दस्तगिरी फरमाएंगे। बस थोड़े दिनों के बाद है। टाहली वाले बाबा इस बदरू के बारे में खोज लगाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। जैसे ही वो इस भयानक रात से पर्दा उठाएंगे, फिर हम इसे निस्फ़ नाबूद करने के सिलसिले में हमारी भरपूर मदद करेंगे, लेकिन ये सब तभी हो पाएगा जब हम अपने अंदर इससे मुकाबला करने के लिए हौसला और वलवला पैदा कर लेंगे, बाकी बेखौफी के साथ, बिल्कुल बेखौफी के साथ। इतना कहकर तैमूर साहब खामोश हो गए। बाप की बातों ने दोनों भाई बहन को काफ़ी हौसला दिया। अब इनके चेहरे खौफ से नहीं बल्कि एक वलवला अंगेज़ जोश से तमतमा रहे थे। नासिर को अपना मामला खटाई में पड़ता नज़र आ रहा था। इसकी वजह यह थी कि साजिद ने इससे मिलना तर्क कर दिया था, और अगरचे आमिल रंगामाती ने इसे इस बात का जिक्र करते हुए तसल्ली दी थी कि आज रात साजिद इसके पास आएगा, क्योंकि वो इसकी धमकी से खौफज़दा हो चुका है। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन साजिद न आया। नासिर को तशवीश होने लगी, अब क्या होगा? ये अमल अधूरा रह गया तो बकौल इस पुरस्कार आमिल रंगामाती खुद इन्हें भी नुकसान पहुंच सकता है। फिर जब रात निस्फ से ज़्यादा बीत गई तो नासिर की बेचैनी फजू तर हो गई। इसे पूरा यकीन हो गया कि अब साजिद कभी नहीं आएगा, जबकि आज रात के अमल को खाली भी नहीं जाने देना चाहिए था। वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। तब इसे और तो कुछ ना सूझा। इसने इसी वक्त इस पुरस्कार आमिल रंगामाती से मिलने का इरादा किया।
دل کی لگن تھی اور کچھ پراسرار عمل کے ادھورے رہ جانے کا بھی انجانہ خوف، چنانچہ وہ دل باندھ کر خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلا اور رنگا ماتی کے ٹھکانے کی طرف چل دیا۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا ہے، رنگا ماتی کا گھر زیادہ دور نہ تھا۔ محلے سے نکل کر بڑی شاہراہ پر 50 قدم چلنے کے بعد ایک چوراہا آتا تھا، جس کے دائیں جانب والی سڑک پر چھوٹا سا پسماندہ محلہ تھا جہاں بیشتر غریب غربا ہی رہتے تھے، وہیں رنگا ماتی کا گھر تھا۔ بہرطور ناصر رات کے تاریکی میں اور ویران راستوں پر تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے ٹھکانے پر پہنچا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر بری طرح ٹھٹک گیا۔ کدھر چلا گیا؟ وہ یہ سوچ کر زیر لب بڑبڑایا، پھر الٹے قدموں واپس لوٹ گیا۔ آج کی رات بغیر عمل کے گزر گئی تھی۔ وہ پریشان بھی تھا کہ نہ جانے اب کیا ہوگا، آیا اب یہ عمل پورا شروع سے دہرانا پڑے گا یا پھر کچھ اور کرنا پڑے گا۔ تاہم اس نے اگلے دن دوبارہ عامل رنگا ماتی سے ملنے کا ارادہ کیا۔ اس نے حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر دکان کھولی تو چونک پڑا۔ اس نے دیکھا کہ شگفتہ کے والد تیمور آ رہے تھے۔ چونکنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی دکان کی طرف آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر سخت برہمی کے تاثرات تھے۔ ناصر اندر سے ڈر گیا کہ کہیں شگفتہ نے ان سے اس کی شکایت تو نہیں کر دی تھی یا پھر ساجد نے رنگا ماتی کے دھمکی کے بارے میں انہیں ساری باتوں سے آگاہ تو نہیں کر دیا۔ بہرطور وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ پھر جب تیمور اس کی دکان کے قریب پہنچے تو ناصر نے نہایت ادب کے ساتھ انہیں سلام کیا۔ برخوردار، تم تو نہایت شریف لڑکے لگتے ہو، یہ تم کیسی خرافات میں پڑ گئے ہو؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا۔ ناصر فوراً سمجھ گیا کہ شاید ساجد انہیں سب کچھ بتا چکا ہے، لہٰذا ذرا انجان بن کر کہا، میں سمجھا نہیں انکل، بات کیا ہے آخر؟ بات تو تمہیں اب پولیس ہی اچھی طرح سمجھائے گی، اور تمہارے اس عامل رنگا ماتی کو بھی، جس کے تم چیلے بن چکے ہو، اور میرے بیٹے ساجد کو اس بدبخت کے کہنے پر سفلی عمل کے اندھے راستے پر چلانا چاہتے ہو۔ تیمور دانت پیس کر بولا۔ ناصر نے سوچا کہ اب خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہٰذا وہ بولا، انکل آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں جانتا ہوں آپ لوگ ان دنوں کسی پراسرار عصیبی مشکلات کا شکار ہیں۔ میں انسانی ہمدردی کے ناطے آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے رنگا ماتی نے مجھے بتایا تھا کہ کوئی بدروح آپ کے خاندان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکی ہے، لہٰذا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اگر اس خاندان کا کوئی فرد یہ عمل کرے گا تو اس بدروح کو قابو کر کے ہمیشہ کے لیے پناہ کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ تیمور نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ اسے جانے کیوں ناصر کے لہجے میں سچائی محسوس ہوتی تھی، تاہم وہ بولے، اگر وہ عامل رنگا ماتی ہمارا اتنا ہی